کہ غریب مریضوں کے لیے بڑی مشکل آن پڑی۔ مختلف ادویات کی قیمتوں میں 10% اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ دوائی غریب کا آخری سہارا ہے، غریب مریض بل بلا اٹھے۔ ڈراپ کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر 9 سے 15% تک اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ادویات کی بڑھتی قیمتوں کا سنتے ہی شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں پہلے یہ اشیاء کی بڑھتی قیمتوں سے تنگ ہیں اور اب ادویات کی قیمتوں میں اضافہ زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے۔ 1 نمبر میڈیسن بھی نہیں ملتی اور جو 2 نمبر بھی ملتی ہے اس کے بھی ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ عام بندہ جو ہے نا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیمسٹ ریٹیلرز کا کہنا تھا کہ آئے دن ڈراپ کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ گاہک ہم پر ادویات بلیک میں بیچنے کا الزام لگاتے ہیں۔ آپ اس کو بلیک کر رہے ہیں، آپ اس کو پرائس بڑھا رہے ہیں، حالانکہ ایسی حقیقت نہیں ہوتی۔ کمپنیاں جو سی ہیں وہ ڈریپ سے ملی بھگت کر کے اور بعض دفعہ بغیر ڈریپ کی اجازت کے بھی پرائس ہائیک کر دیتی ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، کیمسٹ ریٹیلرز ایسوسی ایشن نے ادویات کی بڑھتی قیمتوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ینگ ڈاکٹرز نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ادویات کی بڑھتی قیمتوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں نے اضافے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں زندگی کا آخری سہارا نہ چھینا جائے، قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں وہ خرید نہیں پاتے، ان کی زندگی خطرے میں چلی جاتی ہے۔ یہ ڈیسیجن ریورٹ ہونا چاہیے، ان کو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ عوام بالکل تنگ ہے۔ پہلے گیس کی قیمتیں انہوں نے بہت بڑھا دی ہیں، تیل کی قیمتیں بہت بڑھا دی ہیں۔ اب انہوں نے محکمہ صحت میں جو ایک فیسلٹی تھی جو کہ شہباز شریف نے دی تھی، اس پہ بھی انہوں نے 10% جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ بہت تبدیلی کا نام ہی ہے، تبدیلی کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس سے تمام لوگ جو ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بھی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے حکومت سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی بجائے کمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائی ڈی اے کے صوبائی صدر ڈاکٹر معروف وین سمیت دیگر عہدیداران نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں 15% تک اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ وائی ڈی اے کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتیں بڑھانا غریب عوام سے علاج چھیننے کے مترادف ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی غریب مریضوں کو مفت اور سستی ادویات کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وائی ڈی اے نے حکومت سے ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری واپس لینے اور ادویات کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے مزید کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ وائی ڈی اے کا کہنا تھا کہ اگر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لیا گیا تو اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اور اب بات حکومت کے ایک اور کارنامے کی۔ شہر کے 7 ہسپتالوں اور دیہی مراکز کے لیے بجٹ ہی مختص نہیں، بجٹ نہ ہونے سے چھوٹے ہسپتالوں میں ادویات کی سہولیات متاثر۔ ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی اپنے فنڈ سے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے کوشاں۔ حکومت کی جانب سے کمال لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر میں تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول کے 7 سرکاری اسپتالوں اور دیہی مراکز صحت کے لیے رواں مالی سال میں بجٹ ہی مختص نہیں کیا گیا۔ گورنمنٹ اسپتال سمر آباد، گورنمنٹ اسپتال غازی آباد، رانا رحیم اسپتال سوڈی وال، گورنمنٹ اسپتال شاہدرہ ٹاؤن، گورنمنٹ اسپتال سوامی نگر، پاتھی گراؤنڈ اور چوہان روڈ کے زچہ بچہ سینٹر سمیت دیہی مراکز صحت کو بجٹ نہ ملنے پر ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی گزشتہ 6 ماہ سے اپنے وسائل سے چلانے کے لیے کوشاں تھی، تاہم اب کمپنی کے پاس بھی فنڈز ختم ہو چکے ہیں۔ ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی نے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سے استدعا کی ہے کہ شہر کے چھوٹے سرکاری اسپتالوں اور دیہی مراکز صحت کے لیے بجٹ فراہم کیا جائے تاکہ ان اسپتالوں میں علاج معالجے کی بلا تعطل فراہمی جاری رکھی جا سکے اور ڈاکٹر سمیت نرسز اور پیرامیڈکس کو تنخواہوں کی ادائیگی جاری رکھی جا سکے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، جس میں پنجاب حکومت لاہور شہر میں عدم دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے۔ شہر میں 39 ارب مالیت کے منظور شدہ 463 منصوبے التوا کا شکار ہیں۔ فنڈز کا اجرا کم ہونے سے صوبائی محکموں کی کارکردگی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔
पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अपने पहले माली साल में 6000 से ज्यादा तरक्याती स्कीमों पर कारकर्दगी 20% है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इजलास के दौरान सूबाई महकमों की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिटी 42 को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक शहर में साबिक दौरे हुकूमत के गुज़श्ता 2 माली साल के 463 मंसूबे फंड्स का इजरा न होने के बायस इल्तवा का शिकार हैं। शहर में स्कूल एजुकेशन सेक्टर के 54 करोड़ 43 लाख रुपए मालियत की 57 स्कीमें, हायर एजुकेशन में 44 करोड़ की 6, स्पेशल एजुकेशन में 9 करोड़ की 6 स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। खेलों की 2 अरब की 22 स्कीमें, हेल्थ सेक्टर में 10 अरब रुपए के 31 मंसूबे और वाटर सप्लाई की 8 अरब की 70 स्कीमों पर कारकर्दगी 0 है। सोशल वेलफेयर में 30 करोड़ रुपए मालियत की 4 स्कीमें, लोकल गवर्नमेंट की 3 अरब 37 करोड़ की 10 और रोड सेक्टर में 4 अरब की 18 स्कीमें फंड्स की मुंतजिर हैं। आबपाशी में 20 करोड़ मालियत की 5 स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। एनर्जी सेक्टर में 90 करोड़ की 12 स्कीमें ताहाल नामुकम्मल, पब्लिक बिल्डिंग में 2 अरब मालियत की 90 स्कीमें, अर्बन डेवलपमेंट में 8 अरब रुपए मालियत की 55 स्कीमें, जंगलात फिशरीज में 30 करोड़ की 3 स्कीमें, गवर्नेंस एंड IT में 80 करोड़ की 7 स्कीमें ज़ेर इल्तवा हैं। ट्रांसपोर्ट में ऑरेंज ट्रेन में 10 अरब की 10, इमरजेंसी में 1 अरब मालियत की 11 स्कीमें और माहौलियात में 40 करोड़ की 8 स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। उधर LWMC शोबा इन्फोर्समेंट में करोड़ों के घपले, एक माह में चालान 3 करोड़ के, रेवेन्यू इकट्ठा किया सिर्फ 2.5 लाख। LWMC की इंटरनल इंक्वायरी में इंकशाफ, मामला छुपा लिया गया। LWMC के शोबा इन्फोर्समेंट की जानिब से कागजी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक चंद माह कबल LWMC की इन्फोर्समेंट शोबा की इंक्वायरी हुई, जिसमें एक माह के दौरान 3 करोड़ के चालान जबकि 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने का इंकशाफ हुआ है। LWMC के मुतलका अफसरान ने मामला दबा लिया, जबकि LWMC के शोबा इन्फोर्समेंट का ताहाल SOP मुरतब ही नहीं किया गया। शोबा इन्फोर्समेंट का चार्ज काबिलियत के बरखिलाफ सीनियर मैनेजर कम्युनिकेशन को दिया गया है, जबकि इन्फोर्समेंट के अहल अफसरान की मौजूदगी में चार्ज इजाफी तौर पर सौंपना सवालिया निशान है। करोड़ों रुपए चालानों की मद में इकट्ठा करने वाली कंपनी मुबैना घपलों के बायस सिर्फ चंद लाख रुपए सामने ला रही है। LWMC का ऑडिट गैर मामूली तवालत इख्तियार कर गया। 15 रोज के ऑडिट को 4 माह गुजर गए, ताहाल रिपोर्ट तैयार न की जा सकी। अरबों रुपए के फंड्स में खुद वोट, गैर मयारी वेस्ट कलेक्शन बैग्स का इस्तेमाल, गैर कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट और भर्तियों के मामला सर्द खाने में डालने का खदशा है। LWMC के अफसरान वेस्ट मैनेजमेंट की बजाय ऑडिट मैनेजमेंट में मसरूफ हो गए। हुकूमत पंजाब और सीनियर सूबाई वजीर की हिदायत पर फ्रांसिक ऑडिट शुरू किया गया था। सितंबर 2018 में ऑडिट शुरू हुआ, जिसे 15 रोज के अंदर मुकम्मल किया जाना था। 15 दिनों के बाद ऑडिटर्स की जानिब से 20 रोज का मजीद वक्त लिया गया। ऑडिट को 4 माह होने को आए, ताहम रिपोर्ट फाइनल न हुई। ज़राए के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होने से पहले ही ऑडिट एतराज को ओपन किया जा रहा है। LWMC के अफसरान को ऑडिट पैरा सेटल करने का मौका फराहम किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर कंपनी में बेकायदगियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कंपनी में 30 अरब से ज्यादा के फंड्स इस्तेमाल का ऑडिट भी मुतासिर हुआ है। ऑडिटर्स की जानिब से अफसरान को ऑडिट पैरा से मुत्तला करना कवायद की खिलाफ वर्जी है। कंपनी में फ्यूल और गाड़ियों के इस्तेमाल, LWMC की आगाही मुहिम में बेतहाशा बजट और गैर कानूनी तौर पर रकूम की अदायगियों का भी ऑडिट किया जाना था। शहर के बेशतर इलाके नाकिस सफाई, सीवरेज के पानी की जद में, शहरियों की चीखों पुकार सुनी गई। सफाई कंपनियों के अफसरान की DC ऑफिस तलबी, नाकिस सफाई सूरत हाल और जगह जगह कचरा जमा होने पर बासपुरस की गई। UC सतह पर कचरा उठाने का निजाम सेक्रेटरी काउंसिल की मदद से चलाने की हिदायत भी जारी की गई। DC लाहौर सालेहा सईद की ज़ेर सदारत LWMC की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ, जिसमें अलबराक ओसपाक की इंतजामिया, LWMC के MD समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में अलबराक और ओसपाक की जानिब से अलहदा DC लाहौर को ब्रीफिंग दी गई। गाड़ियों, कूड़ा करकट उठाने के तरीकाकार, मुलाजमीन की तैनाती, ट्रांसफर पॉइंट्स, डंपिंग साइट्स और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद ने हिदायत दी कि कूड़ा करकट डालने के लिए साफ सुथरे कंटेनर्स रखे जाएं, जिनकी मरम्मत जरूरी है। वेस्ट ट्रांसफर स्टेशंस को SOPs के मुताबिक चलाया जाए। LWMC वेस्ट ट्रांसफर स्टेशंस की तस्वीरें बनाकर दे और हर कूड़ेदान पॉइंट की गूगल मैपिंग करवाई जाए। गंदगी फैलाने और कूड़ा करकट को गलियों में फेंकने वाले लोगों को सख्त जुर्माना करने की भी तजवीज दी गई। अभी आपको बताएं, JK कराटे चैंपियनशिप और कोचिंग कोर्स स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जिम्नेजियम हॉल में शुरू हो गया। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए।
जिम्नेजियम हॉल में शुरू होने वाली चैंपियनशिप और कोचिंग कोर्स में मुल्क भर से 300 से ज्यादा लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप के पहले रोज कराटे कोचिंग कोर्स कराया गया। कोचिंग कोर्स में नौजवान कोचेस को कराटे की जदीद तकनीक से आगाही दी गई। ख़वातीन खिलाड़ियों ने कराटे को अपने दिफा के लिए अहम करार देते हुए कहा कि इस चैंपियनशिप से इन्हें खुद को मनवाने और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है और कराटे बहुत अच्छी गेम है। लड़कियों के लिए तो अपनी प्रोटेक्ट खुद कर सकती हैं कि मतलब पहले जैसे होती थी, मतलब वैसे नहीं है। अब लड़कियां भी अपनी खुद प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और ये जो कोर्स हुआ है कराटे का जो कोर्स हो रहा है, ये भी लड़कियों के लिए बहुत अहम है। कोचेस का कहना था कि इस चैंपियनशिप से नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बच्चों को जो हम कोचिंग कैंप में सिखाएंगे, हम उसका रिजल्ट चेक करेंगे कि मतलब इन्होंने उस टेक्निक से कुछ सीखा है या इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की है, ताकि हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड वो अपलिफ्ट हो। 2 रोज़ा चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में मौके दिए जाएंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज, सिटी 42। को बताएं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की अरबों की अराजी पर गैर कानूनी कब्जे की निशानदही के बावजूद हुक्काम की अदम दिलचस्पी सामने आई है। लॉर्ड मेयर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जेरे कब्जा कीमती अराजी पर थाने, स्कूल, बैंक, गंदे नाले, रिहायशी आबादियां और कमर्शियल इमारतें तामीर। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 9 जोन्स में वागुजार कराई जाने वाली अरबों की जायदाद की निशानदही भी की जा चुकी है, जिसके बावजूद MCL शोबा स्टेट मैनेजमेंट बदस्तूर खामोश है। सिटी 42 को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक नौलखा पुलिस स्टेशन की अराजी भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मलकियत है। दाता कंजबख्श जोन के जेरे कंट्रोल एरिया मैक्लोर रोड, मिल्क मार्केट की दुकानों पर, बिलोर पैलेस बिलमुकाबिल गंदा नाला रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा। मॉल रोड पर दुबई इस्लामिक बैंक से मुल्हिका प्रॉपर्टी, अब्दुल करीम रोड किला गुजर सिंह पर रिहायशी अराजी, किसान मार्केट राम गली नंबर 11 में ट्रिपल स्टोरी रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी जेरे कब्जा है। 4 बैंक स्क्वायर लाहौर खास पर ट्रिपल स्टोरी प्रॉपर्टी, बड़ी कोट बैंक स्क्वायर लाहौर खास पर ट्रिपल स्टोरी रिहायशी और कमर्शियल अराजी, डेविस रोड पर निजी होटल से मुल्हिका कमर्शियल दुकानों पर कब्जा किया गया। किला गुजर सिंह हमजा सेंटर से मुल्हिका कमर्शियल प्रॉपर्टी, बीडन रोड और लिटन रोड की कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बास मार्केट, शाह आलम चौक, कच्चा रशीद रोड, संत नगर, इब्राहिम रोड, इस्लामगंज, पुलिस स्टेशन मस्ती गेट से मुल्हिका कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा माफिया का राज है। पुरानी कोतवाली, बंगला अयूब शाह कश्मीरी, पुरानी चुंगी GT रोड पर कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है। तारिक रोड गढ़ी शाहू और पुलिस स्टेशन गढ़ी शाहू के अक़ब में रिहायशी प्रॉपर्टीज, अल्लामा इकबाल रोड गढ़ी शाहू और बेगमपुरा GT रोड पर रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया गया है। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और तरक्याती स्कीमों की जंग। लॉर्ड मेयर लाहौर करम रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने लॉर्ड मेयर को इख्तियारात से मुतालिक तरमीमी दरख्वास्त देने की इजाजत दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मेयर लाहौर और LDA के इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत की। मेयर लाहौर ने बताया कि उन्हें मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया। तमाम इख्तियारात LDA के पास हैं। वो 2 साल से इख्तियारात के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बराह रास्त उनके दफ्तर और मुलाजमीन पर असरअंदाज हो रहे हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि हुकूमत पंजाब इख्तियारात वापस मुंतकिल करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि अब असल काम मकामी हुकूमतों का है, फंड्स ना मिले तो वो कैसे काम करेंगे। अदालत ने मेयर लाहौर को दरख्वास्त में तरमीम की इजाजत दे दी। पंजाब हुकूमत से मकामी हुकूमतों को इख्तियार देने से मुतालिक जवाब भी तलब कर लिया गया। वजीर आला के अहकामात पर DC ऑफिस में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी। डिप्टी कमिश्नर साले सईद और SSP ऑपरेशंस मुस्तनसर फिरोज ने साइलिन की शिकायत सुनते हुए फौरी मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। शहर में अवामी मसाइल के हल के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें कब्जा, तजावजात, लेस्को, वासा समेत दीगर अवामी मसाइल सुने गए। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद और SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फिरोज की जानिब से 59 शिकायत सुनी गई और तमाम तर दरख्वास्तें मौसूल करके उनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का कहना था अवामी शिकायत को फौरी हल कराया जाएगा। आज खुली कचहरी का मकसद ये था कि तमाम अफसरान इकट्ठे, इंतजामी और पुलिस के और बाकी इंतजामिया के बाकी अफसरान भी मौजूद हों। तो कोशिश हमारी यही है कि जो लोग आ रहे हैं उनके मसाइल फिलफोर हल किए जाएं और जल्द से जल्द उनको रिजॉल्व किया जाए। साइलिन का कहना है कि खुली कचहरी का इनेकाद खुश आइंद है, जबकि इंतजामिया की जानिब से तमाम मसाइल तसल्ली से सुने जा रहे हैं।
जो खुली कचहरी लगी है इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है आवाम को और मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। SSP साहब ने मेरी बात सुनी है, उन्होंने SP को फ़ोन भी किया है और उन्होंने कहा है कि आप मेरा वेट करें, मैं अपने ऑफिस में आपका मसला हल करूँगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मुतमिन लग रहे हो जाए साडा काम और सर ने मैंने बिठाया कि सर ने कहा कि मेरे थोड़े नाल जाएगा इथों एक बंदा। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का कहना है कि खुली कचहरी अब हर जुम्मे को 2 से 4 बजे तक लगाई जाएगी, जहां शहरी अपनी तमाम तर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में लड़ाई झगड़े के मुकदमे में मुलविस 2 मुलजमों की अबूरी जमानतें खारिज कर दी गईं। जमानतें खारिज होने पर मुलजमान ने अदालत से फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वकला सामने आ गए और मुलजमान को फरार करवा दिया। ये मनाजिर है लाहौर हाई कोर्ट के, जहां सफ्तराबाद के रिहायशी मुल्जिम ASI आतिफ शहजाद की कत्ल के जुर्म में अबूरी जमानत खारिज की तो मुल्जिम ने कमरा अदालत से निकलते ही दौड़ लगा दी। पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वकला पुलिस के सामने आ गए। इनको छोड़ो, ये तुम नहीं कर सकते गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी नहीं अदालत, ये अदालत के आता है। अहाता अदालत के बाहर पुलिस और वकला में मामूली हाथापाई भी देखने में आई, जबकि मुल्जिमान और मुद्दइयों के दरमियान भी झगड़ा हुआ। पुलिस ने एक बार फिर मुल्जिमान को हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस नाकाम रही और वकला ने अपने मौक्कल को पुलिस से बचाकर अदालत से फरार करवा दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के एक्ट में तरमीम लाकर इसे पंजाब हुकूमत के मातहत करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला को अस्पताल के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार का कहना था कि अस्पताल एक्ट में तरमीम करके इसे पंजाब हुकूमत के मातहत करेंगे। वज़ीर-ए-आला चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी फाइनेंस बोर्ड के मेंबर होंगे। पंजाब गवर्नमेंट को एक साइड पे किया हुआ था, जो कुछ करना था ट्रस्ट ने करना था, उसमें हम एक्ट ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं असेंबली में, उसकी तरमीम कर रहे हैं। उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो टेक ओवर करेगी और बोर्ड होगा, उसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा और उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी लॉ एंड सेक्रेटरी PND वो इसके मेंबर होंगे। इंशाल्लाह इसको हम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मजीद कहा कि PKLI पर सरकार का पैसा लगा है, इसे मुकम्मल करने के लिए पैसे दे दिए हैं। PKLI में गुर्दे के 22 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, किडनी के 22 ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं। तो बाकी जो इसकी बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जून तक कंप्लीट हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को आए 4 माह हो चले, लेकिन उनकी घबराहट अभी भी खत्म होती दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर सेंटर के दौरे पर गए तो सवाल गंदुम तो जवाब चना देते रहे। सवाल अदविया की कमी का पूछा गया, जवाब नौकरियों का दे दिया। आज अद्वियात की कीमतों में जो है वो कुछ 22% इजाफा हो चुका है। जो आपने बताया था कि नौकरियां नहीं मिल रही, हेल्थ डिपार्टमेंट ने 9200 डॉक्टर्स अभी रिसेंटली। बुज़दार साहब से सिंध में बदकलामी करने पर वज़रा के दाखिले पर पाबंदी का पूछा गया। पंजाब के वज़रा या बाकी वज़रा सिंध में आएंगे, बिलावल भुट्टो साहब का अगर नाम ECL से ना निकाला गया तो उनको भी वहाँ नहीं आने देंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं आने देंगे? वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना, ECL प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो नहीं है। बात पुलिस कल्चर तब्दील होने की पूछी गई या बिजली गैस बहरान की, तो जवाब कुछ यूं दिया। बिजली की लोड शेडिंग भी चल रही है, गैस नहीं आ रही है, तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है? सब कुछ आ जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। पुलिस कल्चर तब्दील होने का नाम नहीं ले रहा है। आहिस्ता आहिस्ता होगा ना जी, एक ही दिन में तो नहीं होगा। लगता है सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का तकिया कलाम बन चुका। सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अब आपको बताएं कि इंतजामी गफलत ने हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी को हाई रिस्क बना दिया। वजीर आजम और वजीर आला की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की बड़ी तादाद मंशियात की आदी निकली। लाहौर पुलिस से एहलकारों के चर्स और हेरोइन की लत में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट पुलिस के आला अफसरान को भिजवा दी गई। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बुरी खबर है। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल केस में मुलजिम नामजद कर दिया गया, जबकि तर्जमान नैब के मुताबिक चिन्योट में वाक़ रमजान शुगर मिल्स केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं।
चिन्योट में वाक़े रमजान शुगर मिल्स केस का रेफरेंस मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शहबाज को मुलजिम नामजद कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है, जिसमें मौके पर इख्तियार किया गया है कि 21 करोड़ की लागत से नाला सरकारी फंड से बनाया गया। ज़राए का मजीद कहना है कि नैब लाहौर ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के हवाले से अमली इक़दाम उठाने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब सिटी 42 की खबर की तौसीक करते हुए तर्जुमान नैब ने वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक चिन्योट में वाक़े रमजान शुगर मिल्स केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। तर्जुमान नैब का कहना है कि रेफरेंस की मंजूरी डीजी नैब शहजाद सलीम की सरबराही में होने वाली रीजनल बोर्ड मीटिंग में की गई। रेफरेंस दायर करने के लिए चेयरमैन नैब को भिजवाया जाएगा। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस अदालत में दायर किया जाएगा। और अब बात करेंगे लेस्को के सारिफीन को बैंक्स के चक्कर काटने से बचाने के लिए अहम इकदाम की। नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन डिमांड नोटिस की सहूलत का फैसला। लेस्को का सनती और कमर्शियल सारिफीन की दरख्वास्तों के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन दरख्वास्तों के साथ दस्तावेजात की कॉपियां लिफ्ट करनी होंगी। लेस्को की जानिब से सारिफीन को नए कनेक्शन के अमल को मजीद आसान करने के लिए इक़दामात। शहरी अब डिमांड नोट्स की फीस बैंकों में जाने की बजाय ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। लेस्को चीफ ने मुतल्लिका शोबे को रिपोर्ट तैयार करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। लेस्को ने रिश्वत के खात्मे के लिए घरेलू के बाद सनती और कमर्शियल सारिफीन की दरख्वास्तें भी ऑनलाइन लेना शुरू कर दी। सारिफीन को दरख्वास्त के साथ दीगर दस्तावेजात की स्कैन कॉपियां लफ करना होंगी। इस हवाले से डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने तमाम मैनेजर ऑपरेशंस को मुरासला इरसाल कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से फीसें बढ़ाने के मामले की पंजाब असम्बली के ऐवान में एक बार फिर गूंज उठ गई। अरकान असम्बली ने प्राइवेट स्कूल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया, जबकि हुकूमत ने गुज़श्ता 10 सालों में ज़कात फंड का ऑडिट करवाने का भी ऐलान कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे 10 मिनट की ताखीर से डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की सदारत में शुरू हुआ। वक्फे सवालात में ऐवान को वज़ीर ज़कात और ओशर शौकत अली लालिका ने बताया कि ज़कात फंड का सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाता रहा। पंजाब के किसी भी जिले में ज़कात का पैसा मुस्तहकीन तक नहीं पहुँचा। गुज़श्ता हुकूमत के 10 सालों का ऑडिट करा रहे हैं। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुस्तहकीन तक ज़कात फंड का पैसा पहुँचाने के लिए मौसर पॉलिसी बना रही है। बायोमेट्रिक के जरिए ज़कात फंड देने का सिस्टम बना रहे हैं। अरकान असेंबली का कहना था कि ज्यादा फीसें लेने वाले स्कूल मालिकान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। प्राइवेट स्कूल मालिकान बच्चों के वालिदैन को हिरासा कर रहे हैं। अरकान असेंबली का कहना था कि स्कूलों का स्टाफ न सिर्फ कम किया जा रहा है बल्कि सिक्योरिटी को भी हटाने की धमकियां दी जा रही हैं। प्राइवेट स्कूल माफिया वालिदैन को ब्लैकमेल कर रहा है। उधर कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में सनतों को गैस की किल्लत का सामना है। सनतकार मुतबादिल ज़राए से सनतें चलाने पर मजबूर हैं। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सनतों की बहाली का वादा वफा होता दिखाई नहीं दे रहा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से जहां घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का सामना है, वहीं कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में भी सनतों को गैस की फराहमी नहीं की जा रही। गैस की किल्लत के बाद सनतकार लकड़ी, कोयले, LPG और डीजल इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि गैस का मंजूर शुदा प्रेशर नहीं फराहम किया जा रहा। तहम गैस के जायद बिल भिजवाए जा रहे हैं। मुतबादिल ज़राए से पैदावारी लागत में 40% तक इजाफा हो रहा है। हुकूमत सनतों को गैस की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि सनतें चलें और मुल्क की मईशत बेहतर हो। डिपार्टमेंटल स्टोर सरमायाकारों और दुकानदारों के बाद तख्लीकारों की बारी आ गई। FBR ने गुलबर्ग में वाक़ एजाज आर्ट गैलरी, हिमायल और फ्रेमर आर्ट गैलरी में छापे मारकर सेल्स, परचेज, कंप्यूटर्स और फनपारों की तामीर का मुकम्मल रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रिजवान नकवी अपनी रिपोर्ट में। FBR ने वसी पैमाने पर टैक्स चोरी के मामला पर बड़े स्टोर्स और दुकानदारों के बाद तख्लीकारों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया है। FBR ने गुलबर्ग, MM आलम रोड के करीब यके बाद दीगरे 3 आर्ट गैलरीज पर छापा मारकर रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया। FBR की टीम ने कमिश्नर डॉक्टर सरमद कुरैशी की हदायत पर छापा मारकर एजाज आर्ट गैलरी से पेंटिंग्स की सेल्स, कंप्यूटर्स और बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया है। FBR हुकाम के मुताबिक एजाज आर्ट गैलरी की इंतजामिया आमदन छुपाकर बड़े पैमाने पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स चोरी कर रही थी। FBR की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर नासिर बनाई गई इश्तिहारी मुहिम्मात नुमाइश में पेश की। GCU शोबा फाइन आर्ट्स के इंचार्ज इरफानुल्लाह बाबर और GCU रजिस्ट्रार सबवार अहमद खान ने प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। फाइन आर्ट्स के 13 तलबा ने अपने इश्तिहारी प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए, जिनमें हार्ले डेविडसन, जनरल पोस्ट ऑफिस पाकिस्तान, पुलिस के शोहदा और मज़ाहिया अदाकार और हिदायतकार रंगीला को खिराज तहसीन पेश किया गया। रंगीला प्रोडक्शन थी जिनको हम काफ़ी भूल चुके हैं, जिनका कोई नाम निशाने नहीं है, जिनको हम कॉमेडियन को भूल चुके हैं। तो मैंने बुक बनाई है दैट हैज़ 100 पोएम्स एंड 35 राइटर्स, सिद्ध के नाम से।
طلبا کہتے ہیں کہ برانڈز اور سماجی تنظیم کی کامیابی کا انحصار اس کی تشہیری مہم پر ہوتا ہے۔ نئے رجحانات میں روایتی میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کا ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے تو بڑا اچھا لگا کہ جو پرانی چیز ہے وہ دوبارہ سے آئی ہے، کہ بیسیکلی آئیں GCU دیکھیں ہمارا منی تھیسس، ہمیں اپریشیٹ کر کے جائیں، ہماری غلطیاں بتا کے جائیں۔ شعبہ فائن آرٹس کے طلبہ کے یہ پروجیکٹس ڈگری کا حصہ ہیں۔ شعبے کے انچارج عرفان اللہ بابر کہتے ہیں کہ کلاس روم ورک سے ہٹ کر طلبہ کو مارکیٹ کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق کام کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ کیمرامین سید معراج کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کہتے ہیں آپ کو بتائیں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مضر صحت اشیاء خورنوش کی تیاری اور فروخت پر ایک ڈیری فارم، ہوٹل اور گٹکے کی فروخت پر 2 دکانوں کو سیل کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناقص اشیاء خورنوش فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کوٹ لکھپت میں یونائٹڈ ڈیری فارم کو ناقص انتظامات پر سیل کر دیا۔ ڈیری فارم میں کیمیکل اور پاؤڈر سے تیار کردہ دودھ کی موجودگی، صفائی کا ناقص انتظام پایا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کے مطابق MM عالم روڈ پر معروف ہوٹل کو زائد المیعاد اشیاء کے استعمال پر سیل کر دیا۔ کچن ایریا میں لال بیگ، چوہوں کے فضلہ جات اور صفائی کے غیر معیاری انتظامات پائے گئے۔ ایمپوریم مال میں معروف کیفے کو زائد المیعاد اشیاء کے استعمال پر 50,000 جرمانہ کیا گیا۔ گٹکا کی فروخت پر چودھری تمباکو اور راجو پان شاپ کو سیل کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گٹکا کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ دبئی اور لندن میں جائیدادیں رکھنے والے مزید 348 سرمایہ کاروں کے نام FBI کو موصول ہو گئے۔ FBI کے آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن زون نے بیرون ملک کروڑوں روپے کی جائیدادیں رکھنے والے سرمایہ کاروں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ FBI ہیڈ کوارٹر نے لارج ٹیکس پیئر یونٹ لاہور کو دبئی اور لندن میں کروڑوں روپے مالیت کی جائیدادیں رکھنے والوں کی فہرست اور قومی شناختی کارڈ نمبر بھجوا دیے ہیں۔ آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن زون نے بیرون ملک جائیدادیں رکھنے والوں کو نوٹسز جاری کر کے سورس آف انویسٹمنٹ کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ FBI نے سرمایہ کاروں کو جواب جمع کرانے کے لیے 15 دن کی مہلت دے دی ہے۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کی چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ پیمرا سے بیل آؤٹ مانگ لیا۔ کیبل آپریٹر کہتے ہیں بھارتی مواد پر پابندی ہے، کیبل پر کیا چلائیں، سبسکرپشن فیس، CD چینل فیس معاف، 16% اشتہاری ٹیکس ختم کیا جائے۔ پیمرا نے جائز مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروا دی۔ چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ سے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے پیمرا آفس میں ملاقات کی اور اپنے مطالبات پیش کیے۔ کیبل آپریٹرز کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کیبل پر چلانے کے لیے مواد موجود نہیں۔ انڈین فلموں اور کانٹینٹ پر پابندی سے ڈیجیٹل باکس کا کاروبار بند ہو رہا ہے، جبکہ سی رائز اور ڈش اینٹینا نے بھی کاروبار متاثر کیا ہے۔ پیمرا فیس پہلے مئی جون میں لینا تھا، اب اہلکار روزانہ پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر صحافیوں کو فون کالز پہ دھمکیاں دینے کا معاملہ، صحافتی تنظیموں نے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزارت سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ سعدیہ خان کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی صحافیوں سے بد کلامی اور ان کو فون پر دھمکانے کے خلاف صحافیوں نے اپوزیشن اراکین کے ساتھ مل کر پنجاب اسمبلی کے احاطے میں احتجاج کیا۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا کہ اگر وزیر اعظم وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے وزراء کی زبانوں کو لگام نہیں دے سکتے تو ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ جس طرح ان لوگوں نے اینٹی جرنلسٹ پالیسی شروع کی، چوتھے ستون کو گرانے کی کوشش کی، چوتھے ستون میں دڑالیں ڈالنے کی کوشش کی اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ حکومتی ناقص کارکردگی کو چھپانے کے لیے PTI وزراء عدالتی اور ذاتی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ معاشی قتل و غارت کو لوگ روک سکے، نہ مہنگائی کو روک سکے تو کم از کم اپنے ان بے لگام گھوڑوں کو لگام تو ڈال سکتے تھے۔ اپوزیشن اراکین کا کہنا ہے کہ PTI قیادت کے ایما پر وزیر ہر فرد اور ادارے کی تذلیل کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کلچر ہے اور اس کلچر کو سیاسی جو رہنما ہیں وہ تو برداشت کر رہے تھے، لیکن اب آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کو احساس ہوا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ صحافی برادری کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا انڈسٹری کے خلاف سازش کرنے والے افراد کے خلاف ایکشن نہ لیا تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ شہر میں ہونے والے جرائم اور مختلف مقدمات پر ہونے والی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر اس رپورٹ میں۔
डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई, मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग में बाटापुर, सुंदर और गार्डन टाउन से मशकूक गाड़ियों से असलहा बरामद। गुज़श्ता रोज नवाकोट में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात का मामला, पुलिस की जानिब से मामूल की कार्रवाई जारी, ताहाल कोई अहम पेशरफ्त नहीं की जा सकी। अदालती हुक्म के बावजूद SHO थाना इकबाल टाउन ने शहरी की दरख्वास्त पर FIR दर्ज न की। हुक्म अदौली पर अदालत का SHO जाहिद नवाज की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। पाकिस्तानी मलबूसात की मॉडलिंग के लिए आई थी, नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। मनशियात स्मगलिंग पर गिरफ्तार, गैर मुल्की मॉडल के सेशन कोर्ट में शिकवे। अदालत ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कत्ल का मुल्जिम ASI लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होते ही फरार। पेटीबंद भाइयों ने मुल्जिम को पकड़ने की जहमत ही गवारा न की। ज़ेर तामीर मकान में मार्बल टाइल नाकिस क्वालिटी की भिजवाने और बाद में वापस न करने का मामला। सारिफ अदालत ने फेरोजपुर रोड के दुकानदार को 9 फरवरी को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी सैफ अंजुम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के वर्कर्स वेलफेयर फंड में लाखों रुपए की खुर्दबुर्द सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात के बाद चीफ जस्टिस ने फंड्स ऑडिट के अहकाम जारी कर दिए। तामीराती काम की 1 करोड़ रुपए अदायगी न करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शहरियार सुल्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। नसीम अहमद जाहिद को नोटिस जारी, जवाब तलब। CCPO BA नासिर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होते ही इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर अमल हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का बरवक्त मुकदमा दर्ज न करने पर इजहार बरहमी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा का मुख्तलिफ डिविजनल दफातर की चेकिंग करने का ऐलान। रिकवरी, नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए शेड्यूल जारी। फ्रेंड्स ऑफ म्यो की जानिब से अतिया की गई 1 करोड़ की खतीर रकम से म्यो अस्पताल साउथ सर्जिकल वार्ड की तज़ीनो आराइश मुकम्मल। SNGAD की नाकिस पॉलिसी रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत 2600 स्कूल सरबराहों और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में से सिर्फ 186 मुस्तकिल हो सकेंगे। सदर सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का स्कूलों से मुतालिक शिकायत का इजाला न करने का नोटिस। शिकायत दूर न होने पर मुतल्लिका अथॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू। केयर फाउंडेशन के 2000 से ज्यादा असातिज़ा रुल गए। लाहौर के 600 स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा को 2-2 माह की तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। LDA में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। कासिम अब्बास भी कमर्शलाइजेशन, सिब्तैन रजा लैंड डेवलपमेंट 1, फुरकान सदीक लॉ डायरेक्टरेट में तैनात। पंजाब फूड अथॉरिटी का अपने ही मुख्तलिफ विंग्स की कारकर्दगी जांचने का फैसला। किसने काम किया और किसने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, तमाम अमूर का जायजा लिया जाएगा। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट ज़िमनी इम्तिहान के नताइज का ऐलान 12 जनवरी को करेगा। हफ्ते के कारोबारी दिन के इख्तिताम पर शहर की फॉरेस्ट मार्केट में डॉलर की कीमत में 20 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड। आमिना बशीर मेमोरियल ट्रस्ट के ज़रिए तमाम थैलेसीमिया के हवाले से कैंप का इनेकाद। चेयरमैन ट्रस्ट मोहम्मद रियाज भट्टी समेत थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर आदिल अख्तर ने शिरकत की। फेरोजपुर रोड पर 500 बेड के कायम होने वाले क्लैब अस्पताल की फंडिंग और इमदाद और आगाही के लिए फ्लैटिस होटल में तकरीब में सीनियर सहाफ़ी कॉलमिस्ट अताउल हक कासमी और मुजीबुर रहमान शामी समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। अल्लामा इकबाल टाउन में सुमेरा वेलफेयर फाउंडेशन का इफ्तिताह। फाउंडेशन थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए काम करेगी। अल्लामा इकबाल टाउन में सुमेरा वेलफेयर फाउंडेशन का इफ्तिताह हो गया। फाउंडेशन थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए काम करेगी। सिकंदर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में सुमेरा वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त आला लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम हैदर ने इफ्तिताह करते हुए कहा कि सुमेरा वेलफेयर फाउंडेशन थैलीसीमिया के मरीजों के लिए एक अहम इंस्टीट्यूशन है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि मुझसे गलतियां हुई हैं लेकिन इसमें बदनीयती का कोई अमल दखल नहीं था। उन्होंने कहा कि जुडिशियल एक्विज्म की बुनियाद पर किसी के इख्तियारात में मुदाखलत की, ना इख्तियारात का इस्तेमाल किया। मजीद तफसीलात मलिक अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दी जाने वाली अलविदाई तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि जुडिशियल एक्टिविज्म की बुनियाद नेक नियति पर रखी, किसी के काम में कोई मुदाखलत नहीं की बल्कि आइन के तहत अपना फर्ज अदा किया। जुडिशियल एक्टिविज्म के जो बुनियाद रखी मैंने वो नेक नीति पर मबनी थी और कभी मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं किसी की और डोमेन में इंटरफेयर करूं या मैं यूजर्व करूं पावर को या मैं उस बॉर्डर और उस लाइन को क्रॉस करूं। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि वकला जुडिशियल सेटअप का लाजमो मलजूम हिस्सा हैं
वकला को मेहनत करनी है क्योंकि एजाज हुसैन बटालवी बनना है। वकला को हक के लिए केस की पैरवी करनी है। आज इस अदालत को 22A ने यरगमाल बना लिया है। हाई कोर्ट का ये मकाम नहीं कि पर्चा रजिस्टर हो रहा है या नहीं। यहाँ पे इन्हीं कोर्ट्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल हाई क्वालिटी सिविल केसेस, हाई क्वालिटी क्रिमिनल मर्डर रेफरेंसेस पे आला दलील के साथ मुकदमात की पैरवी होनी चाहिए, ना कि ये कि जी 22A ये दावा ये पर्चा रजिस्टर हो रहा है कि पर्चा रजिस्टर नहीं हो रहा। हाई कोर्ट का ये मकाम नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पुलिस इस्लाहात के बारे में 14 जनवरी को एक तोहफा देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जिंदगी में बहुत कम रोया हूँ, आज आपके प्यार ने मेरी आंखें नम कर दी हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक अशरफ, सिटी 42। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो का नाम ECL से ना निकालने का मामला हुकूमत और अपोजिशन अराकीन के दरमियान तह कलामी हुई। हसन मुर्तजा ने ऐवान से अलामती बाइकाट किया। मजीद तफसीलात क़ज़ाफ़ी भट्ट की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली के ऐवान में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा की जानिब से बिलावल भुट्टो का नाम ECL से ना निकालने के हुकूमती फैसले पर शदीद एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का नाम ECL से निकालने से इनकारी हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का कहना था कि करप्शन करने वालों की चीखें निकल रही हैं। जब हम करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, 10 साल इन दोनों बड़ी पार्टियों के पास थे। 5 साल पीपल्स पार्टी स्याह सफेद की मालिक थी और 5 साल मुस्लिम लीग नून। इन 10 सालों में जितनी लूट सके इस पाकिस्तान के गरीब अवाम को इन्होंने लूटा। आज वो बिहाइंड द बार हैं। आज अगर उन्हें हथकड़ियां हैं तो अपने किए की है, ना खांदे गाजरा ना हुंदी टेढ़ी चपीड़। पंजाब असम्बली में गर्मा गर्म बहस जारी थी कि डिप्टी स्पीकर ने इजलास पीर की सहपैर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन AD मलिक के साथ क़ज़ाफ़ी भट्ट, सिटी 42। उधर पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर और सेक्रेटरी इत्तलात सैयद हसन मुर्तजा ने अलीमा खान और रज़ाक दाऊद के नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। बोले चोर चोर का शोर मचाकर हुकूमत एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रही है। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से मुनक़दा तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अलीमा बीबी इमरान खान की फ्रंट लेडी और रज़ाक दाऊद फ्रंट मैन है। अलीमा बीबी ने दुबई तक बस नहीं किया, अमेरिका में भी खैराती पैसे से इमलाक बनाती रही हैं। अलीमा बीबी जो फ्रंट लेडी है इमरान खान की, रज़ाक दाऊद जो फ्रंट मैन है इमरान खान के, और ये असल पैसा और ये असल जायदादें जो निकल रही हैं ये इमरान खान की बेनामी है। वो सारा बिजनेस जो है अपनी बहन के नाम पे कर रहे हैं। हसन मुर्तजा ने कहा कि हम पर तो इनफरादी करप्शन के इल्जाम थे, ये तो जमात ही करप्ट है। अपोजिशन को पकड़कर अंदर किया जाता है, इस तरह इनको भी अंदर किया जाए। हमारे पे तो ये इल्जामात लगाते हैं कि फर्दन फर्दन करप्शन है। कभी जरदारी साहब को करप्ट कह दिया, कभी क्या हमारी क़यादत के किसी को करप्ट कह दिया, कभी नून लीग को करप्ट कह दिया। ये तो बहसियत जमात करप्ट साबित हो चुकी है। नवाज शरीफ से मुलाकात के मुतालिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात पार्टी पॉलिसी नहीं, जाती हैसियत में हुई। कोई भी फर्द इनसे मुलाकात कर सकता है, वो मजलूम शख्स हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ सादिया खान, लाहौर। शहर में होने वाली तिजारती सरगर्मियों से जुड़ी खबरों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन हबीबुर रहमान लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं महकमा खुराक मुसलसल मसाइल पैदा कर रहा है और अगर महकमा खुराक ने अपना किबला दुरुस्त न किया तो फ्लोर मिल्स 18 जनवरी से सरकारी गंदम नहीं उठाएंगी। अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप कई सालों बाद मुतहर्रिक। फरवरी में पंजाब भर के ताजरों का कन्वेंशन बुलाने का फैसला। लाहौर चैम्बर